सो गुड इवनिंग ऑल, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। आप सभी का स्वागत है आज की इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में। ओके, जहां पे हम कमोडिटी मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आज के स्पीकर है मिस्टर अमोल तोरात। ही इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चॉइस एंड हमने स्पेशल इनवाइट की है मिस्टर स्टीवन डिसूजा फ्रॉम एमसीएक्स, ही इज असिस्टेंट मैनेजर। तो ये दोनों अपने कमोडिटी मार्केट के बारे में अपने व्यूज रखने वाले, हमें कुछ एक्सपर्ट्स राय देने वाले, हमें सिखाने वाले कि कमोडिटी मार्केट है क्या, इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है जिससे हम इसको बेनिफिट उठा सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, और आगे जाके हमें बेनिफिट करवा सकते हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा अमोल थोरा जी का। अमोल सर, वेलकम टू द सेशन। Thank you, Prashant. Thank you, Prashant, and hi, Stephen. Thank you for joining us. It's Thank you, been Amalji. an honor to work with you. It's been really exciting to be alongside with you to have this commodity session. I guess many more. I think Prashant, many more people should be joining in some time. But nevertheless, let's start with the basics. आज के सेशन में हम Stephen will run us through the entire commodities market. Investor awareness week है, so he'll make us all aware about what possibilities and how to trade commodities. What are the possibilities in commodity markets? क्या हम कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसे इस मार्केट का फायदा उठा सकते हैं, and about the exchange platforms also कि इंडिया में हम commodities में को कैसे एक्सप्लोर करें और कैसे इसका फायदा उठाएं. In the meanwhile, I would like to thank each and every person who's joined till now and who would be joining further. Not taking much of your time, over to you, Stephen. Thanks for the session. Advanced. We will have the one more thing. We'll have the question answer session after the Stephen's session is over. So please, any doubts, queries, please note it down or put it on the chat box. We will have it post the presentation of Mr. Stephen. Thank you. Thank you. Over to you, Stephen. Thank you, Amalji, and thank you, Choice, for giving us this opportunity. And since the banner itself is showing that we are celebrating the World Investor Week, so today's basically, as Amalji has said, आज की इस सेशन में मैं आपको जो बेसिक जो जानकारी है कमोडिटी मार्केट के बारे में वो बताऊंगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स है दैट आई विल शेयर विथ यू and how you can use from your trading point of view, diversification point of view, and investment point of view. So these are a few points which I will be sharing with you in this session. And one more thing, at the end of the session, we can have a Q&A, as Amulji said. And I also request you to give your feedback, which I'll be posting some questions about this session, which you can just send us and through chat box. Okay. Amulji, can you confirm me whether the screen has been shared? Yes, visible. It is visible. Yes, Stephen. Okay. So I will just close my this camera just to save the bandwidth. So I'll just start with the presentation. So आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली कम्युनिटी मार्केट्स के बारे में है. कम्युनिटी मार्केट इज समथिंग लाइक हाउ यू ट्रेड इन इक्विटी. यहाँ पे आप एनएससी बीएससी में कैसे शेयर्स बाय या सेल करते हो, सेम वे आप जो कम्युनिटीज एमसीएक्स में आप कम्युनिटीज बाय या सेल करते हो. और हमारे पास कमोडिटीज में फ्यूचर्स प्रोडक्ट है, ऑप्शंस प्रोडक्ट है एंड इंडाइसेस प्रोडक्ट है. ओके. और अगर आप देखेंगे कि जो कमोडिटी मार्केट है दैट इज अ वेरी बेस मार्केट इफ यू सी, बिकॉज जो भी कंपनीज जो भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती है उनका एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल होता है जो प्रोसेस करके उसको एक फिनिश गुड में बना के मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनका based on their profit, their company shares price they rise, which reflects on the equity market. और ये जो भी commodities exchange के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती है on MCX, okay, those are global product. और यहाँ पे MCX में गिनती के लाइक 10 ही प्रोडक्ट है और most of the product has a normal person also we are very much aware कि उसका importance हमारे पर्सनल लाइफ में भी कितना है.
ओके तो अगर मैं गोल्ड ही बोलूँ तो गोल्ड लाइक एवरी पर्सन लाइक्स टू एक्यूमुलेट गोल्ड. Okay, and silver is a one more asset. Then in base metal we have copper, aluminum, lead, and nickel. Okay, and in energy product we have crude oil and natural gas. अगर आप और एक चीज देखोगे, अगर जितने भी कंपनीज जो लिस्टेड है, ओके, उनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज नथिंग बट द कमोडिटी. ओके, और जो प्राइस है कमोडिटी का इज वेरी फ्लक्चुएटिंग इन नेचर. आज आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट 1-2 महीने में उसका प्राइस क्या हो सकता है. कुछ भी ग्लोबल या लोकल फैक्टर्स उस प्राइस को इम्पैक्ट करके उसका प्राइस ऊपर या नीचे आ सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज टू हेज देयर पोजीशंस. ये मैं आपको एक ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. It is very important to the companies to hedge their position, okay, so that any impact on the prices of the commodity doesn't affect their margin. Okay, और अगर उनका margin impact हुआ, that will have an adverse effect on the balance sheet and same will reflect on the prices of the stock also. Okay, so commodity market is a very important market from all aspect and it can be considered as a base market. And even forex market, since it's a global product, most of the products which have been imported or exported, okay, by India or from India, it is in huge quantity. So अगर डॉलर में अगर स्लाइट डिफरेंस भी होता है, it can have a great impact on the pricing which the participant pay in during import or export. So there are different type of participants also who trade on the exchange platform. Okay, so through this slide, I was just trying to tell you one thing, that if you know the commodity market, you can track the overall whole economy. Okay. So before proceeding further, a regulatory overview. MCX जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 2003 में. ओके, तभी जो हमारा रेगुलेटर था वो FMC था. देन सेबी टुक ओवर इन सितंबर 28 2015. सेबी ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए हैं, जैसे कि ऑप्शंस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट. अगर मुझे आपका इसका एग्जांपल देना है तो बेसिकली चॉइस कमोडिटीज पहले अलग था एंड चॉइस ब्रोकिंग अलग था. ओके, तो जब से ये इंटीग्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स हुआ है तो इससे क्लाइंट को एक बेनिफिट हुआ है कि उनका एक ही लेजर से वो इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं. जस्ट दैट इट शुड बी अ फ्री बैलेंस इन देयर लेजर अकाउंट. फिर यूनिवर्सल एक्सचेंज मीन्स सिंगल एक्सचेंज फॉर वेरियस सेगमेंट, यानी एक ही एक्सचेंज पे कमोडिटी, फिर करेंसी, इक्विटी, ऐसे जो भी सेगमेंट है एक ही एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सचेंज. फिर अभी सेबी ने FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनको भी अलाउ किया है कैटेगरी 1 इन कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो हमारे पास जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में वो है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस विच आर वेरी लिक्विड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर. इसके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है प्लस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत ही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. MCX का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 11:30 PM. ओके, अभी आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि इतना लंबा टाइमिंग क्यों. बेसिकली जो भी MCX में प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं दोज आर ग्लोबल प्रोडक्ट. इसका जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट से होता है. कमोडिटी मार्केट में जो वोलेटिलिटी या जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन शाम के टाइम पे होता है, रीज़न बीइंग सिंपल, क्योंकि शाम के टाइम इंटरनेशनल मार्केट ओपन होती है और MCX के जितने भी प्रोडक्ट्स है दे हैव अ वेरी गुड को रिलेशनशिप विद दोज एक्सचेंजेस जहाँ पे ग्लोबली वो ट्रेड होते हैं, जो मैं आपको आगे की स्लाइड में इन परसेंटेज टर्म में बता दूंगा. फिर प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी हैव फ्यूचर्स. इन फ्यूचर्स बुलियन में गोल्ड एंड सिल्वर. बेस मेटल सेगमेंट में वी हैव कॉपर, लेड, निकल, जिंक एंड एल्यूमिनियम. फिर एनर्जी में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. इंडेक्स में वी हैव अ बुलडेक्स कॉन्ट्रैक्ट जो एक सेक्टोरियल इंडेक्स की तरह है. एंड एग्रीकल्चर वी हैव मेंथा ऑयल, कॉटन कैंडी. दिस कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहे हैं. फिर ऑप्शंस में वी हैव गोल्ड ऑप्शन जिसमें गोल्ड एंड गोल्ड मिनी ऑप्शंस है.
फिर सिल्वर एंड सिल्वर मिनी ऑप्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऑप्शन, कॉपर, जिंक एंड निकल। फिर इंडेक्स में एज आई सेड बुलडेक्स। Participants like we have day traders or you can call us speculators also who provide a good liquidity to the market. Hedgers, there are different types of hedgers जैसे कि farmers है, importers है, exporters है, okay? इनको जो है अपना जो positions है वो exchange के platform पे वो hedge करते हैं. Then arbitrators are there who try to take benefit of price difference between the two market. FPO is nothing but a farmer producing organization. As a single farmer, it is not possible for them to invest in the commodity. So they can form their own association and they can participate on the exchange platform. And the regulatory policy, like as I have discussed on the previous slide. This is a very important slide, like factors affecting the pricing of the commodities. As I said, when you think about commodity, you think globally, okay? Because any impact or any news can have a great impact on the prices of the commodity, okay? So the prices ruling in the international market. अगर example दूँ तो you can consider OPEC. OPEC is a oil producing this countries. They produce, they control the supply and demand, so which have an impact on the prices of the crude oil. ओके देन अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, रशिया इज अ गुड सप्लायर ऑफ द नेचुरल गैस, ओके, एंड यूरोपियन कंट्रीज इट वाज ड्यूरिंग विंटर सीजन, दे रिक्वायर नेचुरल गैस एज अ हीटर, ओके, तो वो टाइम पे आपने देखा होगा जो प्राइसेस है नेचुरल गैस का दैट आर गॉन टू हाई ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आल्सो. फॉरेक्स रेट, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो ग्लोबली जो बेस करेंसी है वो यूएसडी है, तो उसका एक इम्पैक्ट अगर करेंसी के प्राइसेस में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका एक इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर भी दिखेगा, दैट इज प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी. देन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक ग्लोबल एंड इंडियन, ओके. अभी ग्लोबल एंड इंडियन में जैसे कि मैंने आपको बताया यू शुड बी अबाउट द ग्लोबल एंड लोकल न्यूज व्हिच इज हैपनिंग, ओके, एंड इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. अभी जैसे कि ग्लोबली यू कैन टेक इट कोविड ऑल्सो, ओके, देन रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ देन दैट टाइम द क्रूड ऑयल प्राइसेस वी हैव सीन दी ऑप्शंस का हाईएस्ट टर्नओवर भी वही टाइम पे हुआ था. क्यों? क्योंकि वो टाइम पे जो वोलेटिलिटी था मार्केट में और जो न्यूज़ चल रहा था, एनजी ने भी वही टाइम पे ऑल टाइम हाई हिट किया था, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी पे आता ही है. देन इंडियन फैक्टर्स लाइक कल अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि गोल्ड के ऊपर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्लोबली ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है, बट आपको क्या होगा जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इम्पोर्ट ड्यूटी और इंक्रीज किया तो उसका एक इम्पैक्ट आपको गोल्ड के प्राइस पे एमसीएक्स पे भी दिखेगा, ओके. सो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, या यू कैन से द काइंड ऑफ रिलेशन दैट इंडिया शेयर्स विद अदर कंट्री, उसका भी एक इफेक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर आता है, ओके. बिकॉज क्या होता है कि उससे जो ट्रेड होता है दो कंट्रियों के बीच में वो एकदम इजीली एंड कन्वीनियंट, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस पे इफेक्ट करता ही है. देन ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ओके. मॉनेटरी पॉलिसी यू कैन टेक द एग्जांपल जो आजकल फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ आता है, ओके, तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो उसका भी एक कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और वो आपने देखा है कि अगर शाम को जब भी इंटरेस्ट रेट का कुछ भी न्यूज़ आता है तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इक्विटी मार्केट नेक्स्ट डे, बट ऑन द कमोडिटी मार्केट आपको सेम टाइम पे जो एमसीएक्स पे भी उसका एक इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाता है. Economic condition like recession, inflation or COVID. See, COVID is the best example if you consider these 2 points like recession and fast growing economies. जब भी कोविड डिक्लेयर हुआ, ओके, तो आपने देखा होगा बॉस लाइक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थे वो बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो जो क्रूड का जो रिक्वायरमेंट था वो उतना डिमांड आ ही नहीं रहा था, तो उससे क्या हो गया कि सप्लाई ज़्यादा हुआ था पर डिमांड नहीं था. आपने देखा भी होगा वो टाइम पे वो माइनस जोन में चला गया था. पर सेम टाइम ड्यूरिंग द कोविड व्हाट हैड हैपेंड कि लोगों का जो जॉब था वो इनसिक्योर था, लाइक दे पीपल वर लूजिंग जॉब और सम फाइनेंशियल नीड. दैट टाइम वो क्या करते थे, अपना जो गोल्ड है वो प्लेज करते थे,
सो गोल्ड का जो वो टाइम पे अगर आपने देखा होगा, जो गोल्ड रिलेटेड इक्विटी स्टॉक्स भी है लाइक मुथूट फाइनेंस एंड ऑल, दे आर हिट वेरी हाई ड्यूरिंग दैट टाइम। और गोल्ड जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। और वो टाइम पे जो मार्केट में जो गोल्ड है ऑन एमसीएक्स प्लेटफॉर्म, आई एम सेइंग इट हैड टच ऑल टाइम हाई। बट जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट कम हुआ, आपने देखा कि जो भी इकोनॉमी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनका जो भी प्रोडक्शन जब भी स्टार्ट हुआ, तो जो डिमांड है नॉट ओनली फॉर क्रूड ऑयल, जो बेस मेटल प्रोडक्ट्स है उनके लिए भी इंक्रीज होने स्टार्ट हुआ था। ओके, तो और जो क्रूड ऑयल है दैट हैड क्रॉस मोर देन 100 बैरल ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ। एंड एट द सेम टाइम जो बेस मेटल प्रोडक्ट्स थे उनका उनके लिए भी लाइक जो रिक्वायरमेंट या डिमांड था वो इंक्रीज हो रहा था। तो वी हैव ग्रेजुअली सीन अ गुड ग्रोथ आफ्टर कोविड आल्सो, एंड दैट indicates the growth, growing economy. So you can say base metal is also known as a growth for the economy. अगर आप बेसिकली अगर आपका एक व्हीकल या घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी घर पे यूज करते हो सामान, दोज आर मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज का ही बनता है। तो यू हैज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो हमको पता है कि इस चीज का कितना रिक्वायरमेंट होता है मार्केट में। और अगर आप एक बर्तन भी आजकल खरीदने गए तो आपको पता है कि उसका रेट 3-4 साल पहले कितना था और अभी कितना है। सो दैट इंडिकेट्स द डिमांड एंड हाउ द economy is changing. Then commodity specific event or statistical release, demand and supply scenario या inventory level। अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जब भी इन्वेंट्री का डेटा आता है ड्यूरिंग शाम के टाइम, आपने देखा होगा दैट वी हैव सीन अ गुड मूवमेंट इन दोस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे जैसे कुछ डेटा या एम्प्लॉयमेंट डेटा या फेडरल का कुछ इंटरेस्ट रेट का कुछ न्यूज़ आया या इन्वेंट्री का डेटा आया, जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट व्हिच हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द purchasing power, and they also have an impact on the commodity overall. देन फेस्टिव सीजन जैसे कि दिवाली में जो गोल्ड का जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पे होता है। पीपल डू बाय लाइक जैसे कि धनतेरस में जो भी है हैज अ रिलीजियस रीजन ऑल्सो पीपल बाय। ओके, वो टाइम पे अगर आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस भी ऊपर होता है। शादियों का जब सीजन आता है तभी भी आपने देखा होगा जो गोल्ड का प्राइस है वो ऊपर ही होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। सो ये सब अगर as a person how we can use commodity market from investment trading and diversification point of view, ये अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे इस स्लाइड में हमने आपको जस्ट व्हाट टाइप्स ऑफ हेजर्स आर देयर, लाइक कॉर्पोरेट्स आर देयर, फार्मर्स आर देयर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, merchandisers, importers and exporters. These are the hedgers. They transfer their risk to the other types of participants, which are nothing but speculators, arbitrators, FPIs, okay, mutual funds, AIF. तो ये बाकी के जो participants है which acts as an investor, they provide good liquidity for the market. ओके, सो अभी हम आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गोल्ड में हमारे पास अलग अलग वेरिएंट है जो मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम में से अगर जो भी रिटेल क्लाइंट्स है यहाँ पे, ओके, अगर उनको पता है कि गोल्ड का जो रेट है ड्यूरिंग अगर आप 5 साल का भी अगर टाइम ले, इट हैज नेवर गॉन डाउन, वो हमेशा ऊपर आया है। गोल्ड इज ऑलवेज यूज एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। कुछ भी जरूरत हुआ तो आप गोल्ड को प्लेज कर सकते हो या आप उसको बेच के अपना जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं। ओके, सो गोल्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना बहुत हाई है हमारे लाइफ में। ओके, तो गोल्ड के जो है अगर आप अपने जो पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ है, उसमें से अगर आप 20 या 30 रुपीज़ का भी अगर गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हो, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सिंपल नंबर्स यूज कर रहा हूँ। अगर 100 में से भी अगर आप 20-30 अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर कभी कुछ ऐसा कोविड का टाइम या वॉर का टाइम आया, तो आपको पता है गोल्ड इज अ ओनली सोर्स, ओके, व्हिच कैन हेल्प यू टू मिनिमाइज योर लॉस। ओके, लॉस तो होगा, लेकिन जो लॉस का जो इम्पैक्ट होगा, अगर आपका 100% इक्विटी में है, तो अगर इक्विटी मार्केट डाउन तो आपका लॉस भी उतना ही हाई होगा। बट गोल्ड कैन हेल्प यू टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ओके, टू प्रोटेक्ट योर लॉस। ओके, मैक्सिमम लॉस नहीं होगा
तो एक तरह से क्या होता है, आप जो है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो। यहाँ पे हमने आपको एक जस्ट बताया है, ये इक्विटी मार्केट है और ये कमोडिटी मार्केट्स है, गोल्ड प्रोडक्ट है। तो दिस इज द काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द निफ्टी एंड द गोल्ड। ओके, सो इस तरह से आप जो है आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओके, और एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लेवरेज होता है। लेवरेज मीन्स जस्ट बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ मार्जिन आप आराम से उसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लिक्विडिटी होती है तो इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट है। डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। इन्फ्लेशन हेज बेसिकली मीन्स कि जो करेंसी है बाय डिफॉल्ट इट लूजेस इट्स वैल्यू। ओके, एंड गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ गुड इन्फ्लेशन हेज जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है। गोल्ड पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स होते हैं उसका फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है। ओके, अगर आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे और गोल्ड खरीदते भी हो तो उसका जो प्योरिटी है वो ऑलमोस्ट 995% 995 का प्योरिटी होता है। उसके नीचे है तो वो रिजेक्ट होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वी हैव ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और अगर आपको इतना अगर हाई प्योरिटी वाला गोल्ड अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आप इजीली ले सकते हो, and that too in electronic form, so it's a very good option, I think so. Okay, तो अभी हम आते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में हमारे पास 4 वेरिएंट है। वन इज गोल्ड पेटल। ये गोल्ड पेटल जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड गुनिया 8 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड मिनी 100 ग्राम्स एंड गोल्ड 1 kg। ओके, एज अ रिटेल क्लाइंट इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 1 kg का गोल्ड बाई करूं और उसके लिए मैं 5 lakhs का मार्जिन दे दूं। ओके, बट एज अ रिटेल क्लाइंट व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्यूमुलेट गोल्ड इन एन SIP फॉर्म आल्सो। ओके, जैसे कि अभी हम ज्वेलर के पास जाते हैं, वहाँ पे हम गोल्ड लेते हैं मंथली स्कीम के हिसाब से। तो वो स्कीम अगर हम सेम अगर यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, सो आपका क्या होता है कि आपका गोल्ड में एक्यूमुलेशन भी होता है और जो प्राइस का जो मूवमेंट अगर वो आपके फेवर में है, तो आप जो प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट है वो भी लेते हो। अगर आप ज्वेलर के पास गए तो आपको पूरा वहाँ पे 1 ग्राम का जो भी अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने दिया है 5700, आपको सेम टू सेम अमाउंट उसको देना है और 1 ग्राम गोल्ड अपने पास लेके जाना है। लेकिन एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म पे आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ओके, उसके लिए आपको 5700 पे नहीं करना है। आपको खाली 528 रुपीज़ पे करना है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10%। ओके, 500 रुपया इज़ नथिंग, वो तो आप ऐसे भी खर्चा कर ही देते हो। तो इससे अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, 500 रुपीज़ देके आप एक पोजीशन क्रिएट करते हो। कल जाके अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर आ रहा है, तो बेसिकली मेरा इंटेंशन क्या था कि जो भी प्राइस अगर ऊपर आता है तो मुझे उसका बेनिफिट होना चाहिए। मेरा फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कल जाके अगर प्राइस ऊपर भी जाता है, आई एम गेटिंग द बेनिफिट। क्यों? क्योंकि जो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी प्राइस बढ़ते जाएगा, बट आई ऑलरेडी हैव अ पोजीशन, सो आई एम गेटिंग अ बेनिफिट। ओके, तो ये जो गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट है ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। सिंस इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर हो जाएगा। ओके, और एक्सपायर होने के बाद एज पर द पे इन पे आउट शेड्यूल आपको जो भी उसका पैसा है वो देना होगा और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके कॉमर्स अकाउंट जो आप ब्रोकर के साथ ओपन करते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके अ, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर 1 मंथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अगर डिलीवरी नहीं उठाना है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आए तो आप उसको रोल ओवर कर देना। ओके, जैसे ही आप उसको रोल ओवर करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हो, आप 2 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। ओके, वो टाइम पे आपको कितना पे करना होगा, अराउंड 1000 रुपीज़। तो ऐसे करते-करते 12 मंथ्स में अगर आप एक्यूमुलेट भी करते हो तो आपका एक एवरेज आउट प्राइस बनता है और आपका जो प्राइस मूवमेंट का जो बेनिफिट हुआ है ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। Okay, so this is a kind of how you can use SIP system for MCX small contracts like gold also. अगर आपका फाइनेंशियल एपेटाइट ज़्यादा है यानी आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, then you can go for gold गुनिया contract also. Okay,
which is 8 gram contract. अभी जितने भी एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे, जैसे कि गोल्ड में वी हैव गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल। तो सिल्वर में वी हैव सिल्वर, सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो। सिल्वर जो प्रोडक्ट है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसा भी आजकल उसका बहुत यूजेज है, सो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे प्राइजेस पे सिल्वर के दिखते हैं। फिर वी हैव एल्यूमिनियम, लेड, निकल, कॉपर, जिंक एंड देन नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इन एनर्जी सेगमेंट। और इसका जो पर टिक का जो मूवमेंट है, यानी एक टिक के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, वो भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। जैसे गोल्ड मेगा में आपको 100 रुपीज़ का प्लस या माइनस होगा पर टिक के ऊपर। सिल्वर मेगा में आपको 30 रुपीज़ का होगा। बेस मेटल में अराउंड 250 फॉर एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक। कॉपर 125, निकल 150, एल्यूमिनियम and crude oil like 125 for natural gas, and crude oil will be 100. ओके, सो ये कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं। तो अभी ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक्सपायरी के नज़दीक आता है, ओके, हाउ डज इट फंक्शन, मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। जैसे ये एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं, तो इसमें इट एक्ट्स लाइक अ सेलर ऑप्शन। ओके, बेस्ड ऑन सेलर इंटेंशन, एक्सचेंज क्या करेगा कि जो भी बायर का इंटेंशन आया है उसको डिलीवरी मार्क कर देगा। इन केस अगर जो सेलर का इंटेंशन है दैट इज कंपैरेटिवली हायर देन द बायर्स इंटेंशन, तो जो भी बायर्स का पोजीशन है उनको रैंडम मार्किंग आ सकती है ड्यूरिंग टेंडर पीरियड। और ड्यूरिंग टेंडर पीरियड में क्या होता है कि एक इंक्रीमेंटल मार्जिन भी आपको लगता है लास्ट 5 डेज में। जैसे कि इन केस ऑफ गोल्ड इट विल इंक्रीज 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस। बट ड्यूरिंग दोज 5 डेज क्या होता है, खाली वही लोग उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं जिनको डिलीवरी में इंटरेस्ट है, अदरवाइज दे रोल ओवर टू द नेक्स्ट मंथ। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू सी आफ्टर द लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेज जो नेक्स्ट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है और लिक्विडिटी भी नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। So this is the way how the future contracts function. Only the energy segment which is there, that is crude oil and natural gas, ये cash settle products है। इसमें अगर आप लास्ट डे तक भी अगर पोजीशन ओपन रखते हो तो वो कैश सेटल हो जाएगा on the due date rate which is announced by the exchange. So only bullion, base metal and agri product, those are deliverable product on the exchange platform. Energy segment product are the cash settle contract which gets cash settled on the due date which is announced by the exchange. अभी जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च हुए। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स वर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वर ऑलरेडी देयर ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। फिर सेबी ने बोला था कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सो द मिनीज वर डिसकंटिन्यूड एंड देयर वाज अ ह्यूज डिमांड बाय द क्लाइंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट, ब्रोकर्स, इवन द एक्सचेंजेस टू रीइंट्रोड्यूस दिस मिनी कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी रीइंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें कंबाइंड टुगेदर वी हैव सीन मोर देन 600 करोड़ डेली टर्नओवर। तो राइट नाउ वी हैव एमसीएक्स एल्यूमिनी, लेड मिनी, जिंक मिनी, क्रूड मिनी एंड नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप में से कोई हेजर है तो दे कैन यूज दिस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स है बेस मेटल के वो 5 MT के कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट जो एल्यूमिनी, लेड मिनी एंड जिंक मिनी दोज आर 1 MT कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसका जो मार्जिन है एज कम्पेयर टू दी बेस मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी लेस। सो इवन जो स्पेकुलेटर्स या रिटेल क्लाइंट्स या जो भी अदर टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स है, they also do trade in these products. So we have actually seen the good participation and it is increasing day by day. Okay, so this is the contract specification for mini contracts also, which I have displayed on the screen. हाँ, तो देखिए मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एमसीएक्स में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए दोज आर ग्लोबल प्रोडक्ट and they have a good correlation with the international market. So if you see gold and silver, gold has an almost 97% correlation and silver has 99% correlation with the products which are traded on the COMEX exchange. Okay, similarly if you see
base metal contract, like if you see the average out also of all this 5 contract, it is more than 95 to 96%. Okay, and it is directly correlated to the London Metal Exchange, where this base metal contracts are being traded. Crude oil and natural gas, like NYMEX. Okay, so these are the very highly traded contracts on the exchange platform. Okay, so now I'll come to the second segment, that is options on futures. Options on futures basically mean though it is the options which is happening on the future contract. In equity market, if you see, if I say Reliance option contract, there the underlying asset क्या हुआ उसका, Reliance का equity share. ओके, लेकिन MCX में कैसा है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो अंडरलाइनिंग एसेट क्या है, MCX का क्रूड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिए जो नाम है दैट इज ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स. ऑप्शंस में लाइक वी हैव सीन द हाईएस्ट टर्नओवर हैपनिंग ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. अगर आप कल का ही अगर टर्नओवर देखेंगे, वी हैव क्रॉस मोर देन 1,80,000 crores overall. In that, option itself has crossed more than 150 crores. Crude oil has had a participation of around 1,39 crores. I'm saying about the yesterday, okay, and it is increasing day by day. Okay, that is a kind of participation which we have seen in the option contract. सेबी ने जब से एक्सपोजर मार्जिन बंद कर दिया है, तो जो पार्टिसिपेशन है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, it has increased drastically, and in options we are crossing the highest turnover of each and every product. कभी ना कभी क्रॉस हो ही रहा है, मतलब इतना काइंड ऑफ टर्नओवर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है. So this is a kind of a glimpse. अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल, we have crossed in September, हमारा जो मंथली एवरेज डेली टर्नओवर था that is around 76,000 crore. फिर नेचुरल गैस में it was around 12,000 crore. Gold has crossed more than 5,500 crores. Gold mini 400 crores and silver 1,200 crores. So this is the daily average turnover, which monthly average daily turnover which we are seeing on the exchange platform also. As a retail client, most of the people, they prefer buying options. So from the premium turnover side also, we have seen a good participation by the market participants. In crude oil, like in month of September only, like we have crossed almost like 1,290 crores. And in natural gas, we have crossed more than 393 crores. So that is the kind of participation we are seeing from the premium side also by the market participants. Mulji, should I cover the basic also on options or should I proceed further? Up to you if you think. Okay, I'll just cover a basic one point, Yeah, one or basic. two points. Yeah. हाँ, देखिए जब भी हम ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा जो व्यू है मार्केट के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने तो आपको ऑप्शंस का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे उस बारे में जानकारी दी है. बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, उसमें हमारा व्यू मैटर करता है. ओके, बेस्ड ऑन दैट हम क्या एक्सचेंज में पोजीशन लेते हैं. तो बेसिकली जब भी हम कोई ऑप्शन बाई कर रहे हैं, वी आर बाइंग द राइट्स टू बाय और राइट टू सेल. ओके, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ और अगर मैं कॉल साइड में हूँ, तो कॉल साइड इज नथिंग बट बुलिश साइड. सो आई एम पेइंग द प्रीमियम टू buy the rights. I am actually giving the premium to buy the rights in case if the market is in my favor. अगर मैं पुट साइड का कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मेरा जो व्यू है मार्केट के बारे में वो बेरिश है, एंड आई एम पेइंग द प्रीमियम टू बाय द राइट टू सेल. ओके, अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसके अगेंस्ट ऑप्शन सेलर भी है. ओके, तो अगर कोई कॉल ऑप्शन बायर बाय कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई कॉल ऑप्शन सेलर भी है. उसका ओपिनियन मार्केट के बारे में रिवर्स है एज कंपेयर टू दी ऑप्शन बायर. ओके,
तो जब भी कोई ऑप्शन सेल करता है, दे बेसिकली कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम दैट बायर, और उनका जो ऑब्लिगेशन है दैट इज, कोई अगर ऑप्शन बायर ने अगर उनका जो राइट्स एग्जीक्यूट किया, एक्सरसाइज किया, सो जो ऑप्शन सेलर है दे आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन. ओके, सो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ऑप्शन सेलर कलेक्ट्स द प्रीमियम और उनका ऑब्लिगेशन है टू सेल. ओके, ही कैन नॉट से नो. एंड एट द सेम टाइम अगर पुट ऑप्शन में वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट द प्रीमियम एंड दे आर ऑब्लिगेटेड टू बाय if the buyer of the option they exercise their right. So ऑप्शन जब भी आप बाय करते हो, बेसिकली आप क्या देते हो, ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस है वो देते हो. फिर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है. हर एक ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं जिसे हम मनीनस भी कहते हैं. इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, फॉर एग्जांपल, गोल्ड का करंट प्राइस अगर 50,000 है और अगर उसका प्राइस इंटरवल 100 पॉइंट्स का है, तो 50,000 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है दोज आर इन द मनी, और 50,000 के जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है दैट इज आउट ऑफ द मनी. अब अगर आप देखोगे इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स लाइक डेल्टा, थीटा, वोलेटिलिटी. ओके, so this कुछ फैक्टर्स है which affects the prices of the premium. तो अगर आप एट द मनी अगर कोई प्रीमियम लेते हो, देखोगे 50,000 के आसपास, इफ इट इज 100 फॉर एग्जांपल, अब जैसे जैसे इन द मनी जाओगे तो वो जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज होते होते प्रीमियम इंक्रीज होगा. वैसे अगर आप देखोगे जो आउट ऑफ द मनी है उनका जो प्रीमियम है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दी एट द मनी. व्हाई? बिकॉज जो इन द मनी है उनका एक इंस्टेंसिक वैल्यू होता है. ओके, दैट बेसिकली मीन्स द अमाउंट बाय विच योर ऑप्शन इज इन द मनी, एंड इट इज एक्चुअली कंसिडर काइंड ऑफ अ प्रॉफिट ऑल्सो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट में ही होते हो. अगर मार्केट और अगर आपका फेवर में जाता है तो इन द मनी जो है दैट विल शो अ फास्टर मूवमेंट एज कम्पेयर टू आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो कुछ फैक्टर्स है जो प्रीमियम के प्राइसिंग को भी डिटरमाइन करता है. तो यहाँ पे हमने आपको मेंशन किया है, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन इंस्टेंसिक वैल्यू इज नथिंग बट करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, एंड इन केस ऑफ पुट ऑप्शन इट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस. सो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास है गोल्ड, गोल्ड मिनी, सिल्वर, सिल्वर मिनी, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक एंड निकल. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शंस के, दे गेट एक्सपायर्ड before the start of the tender period. So in case of bullion contracts, that is gold and silver, and base metal contract copper, zinc and nickel, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 दिन पहले एक्सपायर हो जाएगा. ओके, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेंडर पीरियड. और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में 2 दिन पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेंडर पीरियड, बिफोर द एक्सपायरी. स्ट्राइक प्राइस जो आपको अवेलेबल है गोल्ड एंड सिल्वर में, दैट इज 25 इन द मनी, सेम इन 25 आउट ऑफ द मनी एंड 1 एट द मनी. क्रूड ऑयल में भी सेम है. नेचुरल गैस इज 15 इन द मनी, 15 आउट ऑफ द मनी, एंड बेस मेटल में इट इज 7 इन द मनी, 7 आउट ऑफ द मनी. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, जो एक्सचेंज का जो स्ट्राइक प्राइसेस है फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, even we had to increase the strike intervals just because of the volatility. And in options, volatility is the soul of option contract. तो जितना volatile तो उतना आपको उसमें movement दिखेगा. So during that time, जो crude oil option contract का जो strike prices था, that was almost 81 strike price. That is 40 in the money, 40 out of the money, and 1 at the money. So that was a kind of जो एक्शन है एक्सचेंज को भी लेना पड़ा था ड्यू टू वोलेटिलिटी इन द मार्केट. अभी ऑप्शंस में आपको और एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें 2 टाइम्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आप लिमिट ले सकते हो, पोजीशन लिमिट. एग्जांपल अगर दूं तो अगर गोल्ड में कैसा है, 5 MT इज अ पोजीशन लिमिट फॉर द क्लाइंट, बट इन ऑप्शंस यू कैन टेक अप टू 10 MT. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शंस के, वो आपके
कैसे सेटल होते हैं, मीन्स दैट विल गेट डिवॉल्व इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपका कोई भी पोजीशन इन द मनी है, तो वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका जो पोजीशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर्स में। तो इसमें कैसा है, अगर आपका लॉन्ग कॉल पोजीशन है या शॉर्ट पुट पोजीशन है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग पोजीशन इन दी अंडरलाइनिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे अगर आपका लॉन्ग पुट पोजीशन है या शॉर्ट कॉल पोजीशन है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेल पोजीशन इन दी अंडरलाइनिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है डिवॉल्वमेंट का प्रोसेस कैसा चलता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, दैट आई जस्ट लेट यू नो इन दिस स्लाइड। So what basically happens during the last 4 days, that is before the expiry of the contract, a sensitivity report is generated which is provided to the broker or the member. Then the broker or the member will take the explicit instruction from the client whether they want to convert their position into futures or not. Based on their intimation, exchange will start imposing devolvement margin. Okay, at once you won't be charged whole future margin amount. It gets charged on incremental form. That is E minus 1, 25% will be charged at the beginning of the day. On expiry day, it will become 50%. And once the contract is devolved into the future or converted into future, the total future margin will be charged, and whatever the M2M gain or loss will be debited or credited from your account. CTT on premium or CTT on exercise as mentioned below need to be paid by the buyer and seller. In case if you have taken any excess OI limit in the options, so you have to reduce it as per the allowed OI limits, which is mentioned in the contract specification of the future contract. That is, for example, in gold, if you have taken 10 MT, you have to reduce it as to 5 MT as per the allowed future limits. And then basically it starts the tender period of those future contracts, and then that tender period margin and all those stuff will start charging. But in case if you are in the money, अगर आपका जो भी पोजीशन इन द मनी है, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज कन्वर्ट कर ही देता है। अगर आपको डिलीवरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और आपका पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हो। इसमें आप कॉन्ट्री इंस्ट्रक्शन मत देना। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्री इंस्ट्रक्शन दिया, तो जो आपका प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाएगा और आपका जो पोजीशन है वो वर्थलेस हो जाएगा। सो अगर आपका इन द मनी पोजीशन है, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देना या आप उसको डिवॉल्व कर देना। दैट इज़ एज़ पर योर कॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वोलेटिलिटी है दैट इज द सोल ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग कोविड टाइम जब मार्केट एकदम देयर वाज अ ह्यूज फॉल इन द मार्केट, तो आपने देखा होगा जो 100 रुपए का भी जो प्रीमियम है, दोज हैड गॉन टू 400 रुपीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे हमने आपको एक जस्ट कंपैरिजन दिया है। अगर आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल है दैट इज ऑलमोस्ट 3% वोलेटाइल, and natural gas is almost 4% volatility of the natural gas contract. और ये जो बेसिक वोलेटिलिटी है ये आपको शाम के टाइम दिखेगी, कुछ अगर न्यूज़ आया तभी दिखेगी। ओके, एंड दैट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जितना वोलेटिलिटी रहता है उतना ऑप्शंस के जो पार्टिसिपेंट्स है वो उतने एक्टिव रहते हैं। ओके, तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, शाम का टाइम बेसिकली आप घर पे होते हो, आप रिलैक्स मोड पे होते हो, आप अच्छे से मार्केट को स्टडी कर सकते हो, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोडक्ट्स as per your understanding and as per the your call. Like as an exchange we do not suggest, आप एक प्रोडक्ट को स्टडी करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक जो है प्रोडक्ट सेगमेंट दैट इज इंडाइसेस, दैट इज नथिंग बट बुलडेक्स। बुलडेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप फ्यूचर्स में गोल्ड या सिल्वर बाई करते हो मेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जो मार्जिन ही है दैट विल गो अराउंड 8 lakhs के आसपास, क्योंकि उतना उसका वैल्यू होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बुलडेक्स या मेटल बुलडेक्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज उसका जो ऑर्डर साइज ही या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही ऑलमोस्ट 7 to 8 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपल्सरी ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई डिलीवरी नहीं है, ये कंप्लीटली कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है।
इसमें जो है पर टिक आपको 50 रुपीज प्लस या माइनस है। अगर पोजीशन आपके फेवर में है यू कैन मेक अ गुड अमाउंट। और लास्ट डे जो है इसका, ये जब भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है ऑन द लास्ट डे इट इज ट्रेडेड ओनली टिल 5 PM। रेस्ट ऑफ द डे इट इज ट्रेडेड अप टू 11:30 PM। तो अगर और इसका जो मार्जिन है हैज कंपेयर टू द बिग प्रोडक्ट इट इज वेरी लेस, अराउंड 30 to 40,000 के आसपास में आप इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। और इसका जो वेटेज है, सिंस इट्स अ इंडाइसेस, तो हर एक प्रोडक्ट का एक वेटेज होता है। तो गोल्ड का जो वेटेज है दैट इज ऑलमोस्ट 65% एंड सिल्वर इज ऑलमोस्ट 36%। तो आप अगर गोल्ड को भी मॉनिटर करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी नोटिस किया होगा ड्यूरिंग वोलेटिलिटी या ड्यूरिंग सम न्यूज़ और एनी, जब भी कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं, सो वी हैव सीन good movement in silver and gold also. So I have seen like 3000 का भी मूवमेंट सिल्वर में हुआ है, गोल्ड में 500 रुपए का भी मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपको जैसे एक इंडिकेटिव एग्जांपल दिया है कि अगर गोल्ड में अगर 100 रुपए का मूवमेंट हो रहा है और सिल्वर में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है, so you can see a impact of 21 points on bull index. Similarly, if there is no movement in gold, लेकिन सिल्वर में 100 रुपए का मूवमेंट हो रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का है बुल इंडेक्स पे। और दोनों में अगर 100 पॉइंट का इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट आपको बुलियन इंडेक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का दिखेगा। सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट ऑफ 27.8 पॉइंट्स, 27.4 पॉइंट्स सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ब्रेक इवन है दैट इज दैट वो हिट हो जाता है विथ ऑलमोस्ट 2.48 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे हमने आपको जैसे एक इंडिकेटिव एग्जांपल दिया है ऑफ बाय एंड सेल ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुलडेक्स फ्यूचर्स। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ऑलमोस्ट लाइक 6,85,000। पर टिक आपका जो है वो 50 रुपीज है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, GST, CTT, ये सब मिला के जो आपका कॉस्टिंग है इट कम्स टू अराउंड 124 रुपीज। दैट इज नथिंग बट 2.48 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो अगर पोजिशन आपके फेवर में है, so you can make a good amount considering this two movement in the market. And even on this MCX India website we provide you the event calendar. So you can go to MCX India website. In that knowledge series there is global economic, there you select the current month and you can view the current month event. So it will be a helpful thing for you so that you can track the market and accordingly you can take the position. So since we are celebrating the World Investor Week, it is very important for the investor to know the do's and don'ts. Okay, so you should only trade to the registered member of the exchange like Choice, and you should always insist on updating your mobile and email ID with your broker, and make sure that it is uploaded on the exchange UCC database. Fill your KYC document. Also read the risk disclosure document and write an obligations of investors. And from don'ts point of view, do not get influenced by the indicative returns or the false promise. Don't be carried away by the advertisement, rumors, or hot tip. Always make payment in electronic form towards margin and settlement, and act like an responsible investor. You should always track the physical market, track the global and local economy, trade as per your financial limit and risk profile. Don't take just bets, take an informed decision, and just to cover your loss, don't overtrade, and continuously track your positions so that you can save your positions. This is a web portal of SEBI. Okay, so we have given you those details also like on the site presentation which you can view. Even this is an online dispute resolution portal. You can go to this site and you can log in
and here you can register your complaint. This is the dispute resolution mechanism. And same like some do's and don't which I have mentioned in the previous slide. So that's it from my side. So I'm open for the Q&A session, and in case Amulji wants to add something, he can add. Amulji, and one more thing, I request you to give your feedback. I'll just post some questions on the chat box. You can just give your feedback as A, B, and C, which is mentioned in that. Yeah, over to Amulji. Thank you, Stephen. Thank you for such a wonderful explanation, in-depth understanding about commodities, especially the futures and the options side. I'm sure not many people are very well aware of the options trading, and today's session added value in terms of the understanding of options. We have a few questions. People who want to ask can raise up their hand, and in the meanwhile, there are some questions. Tabish Mohammed wants to ask, options trading जैसे इक्विटी मार्केट में थीटा डेल्टा होता है, वैसे ही कमोडिटी में भी ऑप्शन में वो फैक्टर आता है क्या? Surely sir, आता है सर वो. तो yes, तबिश, yes, options is a instrument. तो ये कोई भी मार्केट हो, भले वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, किसी में भी ऑप्शंस में डेफिनेटली अल्फा बीटा थीटा ये सारी चीजें मैटर करती हैं और उससे मार्केट में फर्क आता है. और सर जैसे कि आप एक ऑप्शन, या सॉरी यस स्टीवन, कंटिन्यू. सर जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपने जैसे कि ये टर्म यूज किया, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर हाउ इट इम्पैक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ द प्रीमियम. सो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जैसे कि अमूल जी ने बताया, आपको इक्विटी में भी सेम है, फॉरेक्स में भी सेम है, कमोडिटीज में भी सेम है. ओनली जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता है. तो सिंस यू आर अ ट्रेडर इन ऑप्शंस, you can monitor crude oil contracts at evening time. And just I will add one more point for all the clients, like you can add on your market watch just a one page, you can keep it for commodity, and you can add gold, silver, crude oil, natural gas, this contract. And crude oil and natural gas, you can also add 2 months, two series of strike prices up and down, and you can just monitor. And as you said, you know how to check the premium. I think you yourself will contact Choice how to participate in this contract. Great. I hope Tavish, you've understood the. We have resolved your question. There is another question. Mr. Rajendra Shinde wants to ask. Rajendra, I have allowed you to talk. Please speak. हेलो, हाय सर. Hi sir. Yes sir. मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने जो गोल्ड पिटल का बताया, उसमें जो क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, फ्यूचर रहता है. अगर वो रहता है तो कितने पॉइंट का रहता है, तो उसमें प्रॉफिट कितने पॉइंट पे, अगर 1 पॉइंट ऊपर गया तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा और नीचे आया तो कितना लॉस होगा? सर गोल्ड पेटल जो है ना, ये 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें हार जीत जो है आपको 1 रुपया का है. ये मैंने आपको जो बताया था गोल्ड पेटल का, वो आप चाहिए तो एज एन SIP भी बना सकते हो. ओके. मैं आप खाली क्या 500 रुपया दे के अपने एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो. देखो जैसे कि मेरा इंटेंशन क्या है ना, दैट मैटर्स. मेरा इंटेंशन क्या है कि कल अगर गोल्ड में अगर ऊपर या नीचे होता है तो उसका जो प्राइसिंग का जो बेनिफिट है वो मुझे आना चाहिए. गोल्ड आप घर पे रखो या मार्केट में रखो, उसका वैल्यू तो उतना ही होने वाला है. सपोज मैंने अभी देखा करंट का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 5832 रुपीज है, बराबर. हाँ. उसका हाई लो मैंने चेक किया तो मिनिमम उसमें 500-600 रुपए का मूवमेंट है अभी मतलब 1 वीक के अंदर. तो अगर मैंने वो ये 540 रुपए मार्जिन देके एक लॉट बाई किया होता 1 ग्राम का, तो मुझे 600 रुपए प्रॉफिट मिलता ना, बराबर है? हाँ. ओके. अगर ऐसे में 10 ग्राम लेता तो नहीं सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपका इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको गोल्ड एक्यूमुलेट करना है तो आप जैसे कि अगर ज्वेलर के पास जाके अगर पूरा अगर अमाउंट देके करना है, तो उससे अच्छा तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्जिन देके वो उसका जो प्राइसिंग का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो ना. और अगर कल जाके अगर आपको एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अगर उसका डिलीवरी उठाना है तो वो भी आप कर सकते हो. जितना उसका पे आउट अमाउंट है वो आप दे देना. फिर जो ब्रोकर है वो आपके कॉमर्स अकाउंट करके होता है, जैसे कि डीमैट में कैसा आपका
शेयर्स क्रेडिट होता है, yes, CDSL वैसे होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये आपका वेयरहाउस रिसीट क्रेडिट हो जाएगा। और कल जाके अगर आपको बेचना भी है तो मार्केट 11:30 तक ओपन है, जस्ट बाय वन क्लिक यू कैन सेल इट ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आल्सो, Yes, जो I आपको understood. फिजिकल मार्केट में पॉसिबल नहीं है। Okay, sir. Understood. Thank you, sir. Thank you. I request each one of you to give your feedback also on the chat box. I have just posted a feedback thing. थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू स्टीवन। प्लीज सभी लोग, माय रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप लोग सेशन का फीडबैक अभी इसी चैट बॉक्स पे दे। वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन Q&A सेशन। स्टीवन, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर तबेश अगेन। क्रूड ऑयल के डीप इन द मनी के ऑप्शन को ओपन रख देते हैं तो एक्सचेंज सेटलमेंट का क्या चार्ज होगा? ओपन रखेंगे तो क्या चार्ज होगा? अगर वो कैश सेटल होगा तो आई थिंक तभी दिस विल बी रिजॉल्व्ड इंटरनली। ये सवाल आपके पास एचओ डेस्क का नंबर है, यू कैन कनेक्ट विद मिस्टर कार्तिक और एनी ऑफ द पर्सन ऑन द एचओ डेस्क, वो आपको इस सवाल का रिवर्ट कर देंगे। या तो आप आई एम सेंडिंग यू ईमेल आईडी ऑल्सो, प्लीज इस ईमेल आईडी पे आपके जो भी सवाल हो या क्वेरीज हो, एनीथिंग, आप लोग इस डेस्क पे फोन करके या ईमेल करके आप जो भी सवाल है आपके उसका रिस्पांस ले सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई पूछना चाहता है? Ashish has one question. Ashish, please. I've allowed you. Hello, sir. Hello. Hello. Yes, Ashish, we can hear Yes, you. sir. Yeah. I'm audible. Sir, I opened the account in Choice, so I need to understand like if I trade in the crude oil or anything, in commodity market. So what is the brokerage charge? Because recently the one trap is in Choice when I the trade in option trading. So that's why I dropped the one mail to Choice customer support, but still can't get any response on that. So that's why I want to know when I trade in the crude oil or any commodity. So what is the like a brokerage charge and how I can trade in that commodity? Okay, Ashish ji, can you just post your client code Mm, on the chat box so that my team will get back to you? yes, definitely. Yeah. YFS. Or else Yes, you can personally post it to me, or you can see Karthik. You can post it to Karthik also. okay, so how I can personally post to you? No, on the chat box. अभी आप chat पे डाल दीजिए ना. Yes, मैंने चार्ट पे डाल दिया मैंने Karthik, you can choose me or Karthik and put it personally to us. हाँ, बिकॉज सर मैं 1 वीक से फॉलो अप ले रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर मुझे कुछ रिवर्ट नहीं मिल रहा ना, रिस्पॉन्स मिल रहा ना। Which location are you present in, sir? आई एम इन द पुणे लोकेशन। पुणे, okay. हाँ, तो कंटिन्यूअसली सर मैं कस्टमर के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ और जो भी मेरे फाइनेंस एडवाइजर First of all, sorry for the inconvenience. Ashish ji, I'm really sorry for the inconvenience. But let me get this resolved. हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी. Just put your contact details and your client code to Mr. Karthik on the chat box. Okay. I post my client my ID. This is YFS0062 and Yes. mobile number I will also definitely share in that chat box. Okay. Okay. Thank you, Ashish ji. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. We have another question from Deepak Bhatt, where we can sell warehouse receipt which we have received as a delivery. Can it be sold at MCX? So the warehouse receipts, see there are two things. One is once you do the pay in payout, okay, in case of gold,
Petal, the delivery center is Mumbai. In case of other product of gold, the delivery center is Ahmedabad. So even we have an additional delivery centers also like Mumbai, but in that what happens, like that condition should match, like both the buyer and seller should be from the same location, or otherwise you have to take the delivery from the base location only. So that is the procedure. Anyways, like if you want to have a complete detail on the product side, you can visit our website. Under that, you can go to product. In that, you have all the products. In that, the specification is given along with the delivery center details also. Thank So you, I hope. Stephen. Thank you so Okay. much. We Hello. hope, Deepak, you've got the answer for what you are looking for. Anybody else who wants हेलो, हाय to? सर। Yes, Rajendra. मुंबई में जो ऑफिस है और इधर ये एमसेक्स का इसमें है ना, अंधेरी ईस्ट में है ना, वही है ना? हाँ जी, राजेंद्र जी। मुंबई में जो है वो इसका एमसेक्स का ऑफिस वो अंधेरी ईस्ट में है ना? M6 का ऑफिस, हाँ M6 एक्सचेंज का। हाँ, एक्सचेंज का वही। हाँ जी, अंधेरी ईस्ट में ही है। अंधेरी में ओके, है। हाँ ठीक है, आप थैंक यू। कहाँ से हैं, राजेंद्र जी? मैं सर अंधेरी में रहता हूँ। अच्छा, मैं तो आप पुणे चॉइस के से हूँ। क्लाइंट है, हमारे साथ जुड़े यस हुए हैं। यस, आई एम अ सीबी है। ओके, दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? Any other questions? If not, then we shall wind it up. So please request all to quickly provide us the feedback. If you can provide on the chat box, it will be great. Otherwise, I have posted the email ID. Please, any further queries or any thing you would like to know on commodities and currencies, we have a specialized desk at head office. The email ID, I'm posted it again. Okay, Stephen, so we have done. Thank you so much, Stephen, for having been so patient and taken us through the commodity journey, understanding completely about the futures and options. We wish to have many more sessions like this together. And special thanks to each and everyone out here, all the my colleagues, my friends, ladies and gentlemen, the investors, the clients, everyone out here, the BAs, everyone, thank you so much. We are always here for your service and to educate you anything on the commodities and currencies side, please do get in touch with us. We are always available round the clock to serve you at the best possible capacity. Over and out, I would like to wish you all a very, very happy weekend, being a Saturday, Sunday. Enjoy your Saturday, Sunday. Happy Navratra to all of you because it starts on Sunday, and we wish good health, extraordinary prosperity coming Navratra, Diwali, following so many festivals. Thank you so much, each and everyone. Over and out. Thank you. Thank you.